आप सभी को गुरु सिक्केरी यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ। सो लास्ट क्लास वी आर डिस्कस रिगार्डिंग द ग्लूकोमा. So in glaucoma what happens? Glaucoma is a condition characterized by progressive atrophy of the optic nerve. Okay, this optic nerve is progressive atrophy होता है. Atrophy means the lack of function, means उसको functions धीरे धीरे कम होने चालू होता है. क्यों होता है ग्लूकोमा आंख में, क्यों होता है? Because that theory is there is a aqueous humor released by the epithelial membrane. The aqueous humor released by the epithelial membrane is collected and circulated through the anterior chamber. Okay, anterior chamber में release होके circulate होते रहते हैं normally in normal eyes. But in case of glaucoma, certain times this angle are closed or certain times the trabecular meshwork. This is the area below the cornea. Cornea का नीचे एक एरिया होता है. ओके, सिलियरी बॉडी का नजदीक में. सो ट्रेबेकुलर मेशवर्क अगर ठीक से काम नहीं किया तो तभी भी ग्लूकोमा होने का चांसेस होता है. इसमें क्या होता है? ट्रेबेकुलर मेशवर्क क्या करते हैं? ट्रेबेकुलर मेशवर्क दैट ड्रेन दी एक्वेस ह्यूमर रिलीज्ड बाय दी एपिथेलियल मेम्ब्रेन थ्रू दी एंटीरियर चेंबर. एंटीरियर चेंबर से ट्रेबेकुलर मेशवर्क वो ड्रेन करने में मदद करता है. दैट एक्वेस ह्यूमर इज ए थिन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. एक्वेस ह्यूमर क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है. वो लेंस को सपोर्ट करता है, कॉर्निया को सपोर्ट करता है, टोटल आईज को शेप में रखने के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड है. देयर इज ए प्रॉपर सिक्रीशन एंड ड्रेनेज इज वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल शेप ऑफ द आईज. आईज नॉर्मल रहने के लिए एक्वेस ह्यूमर प्रॉपर रिलीज भी इंपॉर्टेंट है. उसका रिलीज होने के बाद वो ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें एबनॉर्मलिटी हो गए तो ग्लूकोमा होने का चांसेस होता है. सो glaucoma is a group of disorder that is characterized by increase in intracranial pressure. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट होने से प्रेशर बढ़ते हैं. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. ओके, अट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व अट्रोफी हो रहा मींस दैट इज अ लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. पेरिफेरल विजन भी लॉस होने चालू होता है. दिस इज द ग्लूकोमा. So glaucoma types, the last class we are discussed regarding the types of glaucoma: congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos. Okay, this is a congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos means it is a one of the abnormality seen in the infant. It is a characterized by developmental abnormality due to the congenital defect. Developmental abnormality due to the congenital defect. Congenital defect से developmental abnormality होता है. Developmental abnormality in the anterior chamber of the eye, so that is called as congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos. Okay, next acquired means due to the certain acquired conditions the glaucoma occurs, that is acquired glaucoma बोलते हैं. In acquired glaucoma two types, primary and secondary. Primary में two types है, open angle glaucoma, closed angle glaucoma. These two are very important. ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है? सो लास्ट क्लास में मैं बोला था, ओपन एंगल ग्लूकोमा मींस हियर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज नॉर्मल, बट इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा. कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा क्या है? ओपन एंगल ग्लूकोमा. द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज ओपन, but the trabecular meshwork are obstructed, so which may lead to the increased intracranial pressure inside the anterior chamber of the eye. That increased intracranial pressure that reduces the functions of the optic nerve, that may lead to the vision loss. This type of glaucoma is called as open angle glaucoma. Okay, then closed angle glaucoma means closed. Okay, in closed angle glaucoma the iris is slightly bending. Iris is slightly bending, so that causes the narrowing or obstruct the angle. That may lead to the aqueous humor is unable to drain properly. Okay, aqueous humor drain नहीं हो पाएगा, so that is also may lead to the increased intracranial pressure. The increased intracranial pressure is called as glaucoma. उसको हमने glaucoma बोलते हैं. Okay, so next इसके बाद में हमने स्टडी कर रहा था रिस्क फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है. ग्लूकोमा डेफिनेशन, ग्लूकोमा टाइप्स हमको समझ में आया. नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर ग्लूकोमा. ग्लूकोमा क्यों हो सकता है? तो क्यों होता है? तो एग्जैक्ट काज इज अननोन. ग्लूकोमा क्यों होता है? ये एग्जैक्ट काज इज अननोन फैक्टर है. सो सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होता है. रिस्क फैक्टर्स फॉर ग्लूकोमा. रिस्क फैक्टर्स, सो फर्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री से हो सकता है.
फैमिली हिस्ट्री में अगर ग्लूकोमा है, फैमिली हिस्ट्री से हो सकता है। ओके, डायबिटीज मेलिटस इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग ग्लूकोमा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलिटस दैट कॉजेस द माइक्रोवेस्कुलर डिसीज, माइक्रोवेस्कुलर डिसीज, न्यूरोपैथी। ओके, माइक्रोवेस्कुलर डिसीज होता है मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होता है डायबिटीज मेलिटस में। सो आईज हैव द वेरी माइक्रो वेसल्स, सो दैट विल लीड टू द ग्लूकोमा होने के चांसेस होता है। ओके, डायबिटीज मेलिटस। देन रीनल फेल्यूर, रीनल फेल्यूर में भी होने के चांसेस होता है। बिकॉज ऑफ रीनल फेल्यूर द एंजियोटेंसिन रिलीज्ड बाय द kidney, so that impair the blood pressure, due to the impairment of blood pressure, so excessive constriction of the blood vessels inside the eyes, that may lead to the ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होने का चांसेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज से क्या होता है? ओके, सेम कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, दैट में कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर से भी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस होता है। हमारा बॉडी में बीपी मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रीनल सिस्टम, तीनों इंपॉर्टेंट है। और तीनों में कोई भी एक सिस्टम सीवियर इंपेयरमेंट हुआ है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस होता है। ओके, नेक्स्ट माइग्रेन सिंड्रोम, माइग्रेन सिंड्रोम मतलब माइग्रेन सिंड्रोम मतलब यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, माइग्रेन सिंड्रोम, माइग्रेन सिंड्रोम से भी हो सकता है। ओके, माइग्रेन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से भी हो सकता है। ओके, माइग्रेन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन। ओके, देन यानी ब्लंट ऑब्जेक्ट्स और पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई ट्रूमा, आई ट्रूमा मीन्स आई ट्रूमा का काजेस में जो बोला सब काजेस हो सकता है। ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन बॉडीज, ओके, जो भी हो। सो आई ट्रूमा से भी ये ग्लूकोमा होने के चांसेस होता है। सो दीज आर द व्हाट एटियोलॉजिकल फैक्टर और रिस्क फैक्टर्स ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का रिस्क फैक्टर से। स्मोकिंग से भी हो सकता है, स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या करते हैं? स्मोकिंग, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग। सो स्मोक करने से, स्मोक में निकोटिन होता है, निकोटिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन से आइज में ब्लड वेसल्स बहुत माइन्यूट होता है। सो माइन्यूट ब्लड वेसल्स इनसाइड द आइज आर constricted, that will lead to the obstruction of drainage system, so or that lack of blood supply to the eyes, so visual impairment हो सकता है। so this is a smoking is also one of the risk factors for glaucoma, glaucoma होने का risk factor हो सकता है। okay, so these are the risk factors of glaucoma, glaucoma का risk factor इतना है। family history, diabetes mellitus, renal failure, hypertension, cardiovascular disease, smoking, okay, migraine syndromes, these are the risk factors of glaucoma. Okay, next is pathophysiological condition of glaucoma, pathophysiological condition, pathophysiology, pathophysiology glaucoma। okay, क्या हो सकता है पैथोफिजियोलॉजी में? ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है? ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर डायरेक्टली क्या होता है? इंक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, 10 to 21 mmHg इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। सो एटियोलॉजिकल फैक्टर से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से देयर आर टू theories explain the two theories explain the causes of glaucoma। दो थ्योरी है, एक है मैकेनिकल थ्योरी, दूसरा है इनडायरेक्ट मैकेनिकल थ्योरी। ओके, मैकेनिकल थ्योरी है, दूसरा है इनडायरेक्ट इस्टेमिया, ओके। सो इनडायरेक्ट इस्टेमिया ड्यू टू द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो व्हाट हैपेंस, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से आगे क्या होता है? दो थ्योरी एक्सप्लेन करता है। सो कैसे ग्लूकोमा होता है? वन इज मैकेनिकल थ्योरी एंड सेकंड वन इज ओके इनडायरेक्ट इस्टेमिया थ्योरी, ओके। मैकेनिकल थ्योरी में क्या होते हैं? ओके, डायरेक्ट मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल थ्योरी मतलब मैकेनिकल इंजरी, डायरेक्ट मैकेनिकल इंजरी से हिट, सडनली हिट टू द आइज, मैकेनिकल इंजरी मीन्स सडनली आइज को सडनली कुछ लग गए तो क्या होता है?
ओके, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होता है ड्यू टू द मैकेनिकल इंजुरी, ड्यू टू द मैकेनिकल इंजुरी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। ओके, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होता है आइस, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी से इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, फिर से स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। ओके, इससे क्या होता है, डैमेजेस रेटिनल लेयर, डैमेजेस द रेटिनल लेयर। ओके, रेटिनल लेयर डैमेज होता है, डैमेजेस रेटिनल लेयर, डैमेजेस रेटिनल लेयर। ओके, रेटिनल लेयर डैमेज, रेटिनल लेयर डैमेज हो जाए तो सो रेटिना इज अनेबल टू कंज्यूम और रेटिना इज अनेबल टू passes the light rays from the retina to the optic nerve, रेटिना से ऑप्टिक नर्व रेज पास नहीं होता है, सो दैट में लीड टू द ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। सो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी से क्या होता है, विजन लॉस, विजन लॉस होता है। सो दिस इज अ वन थ्योरी, मैकेनिकल थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ द ग्लूकोमा इज occurs। ओके, इन मैकेनिकल थ्योरी ड्यू टू द मैकेनिकल इंजुरी, ओके, ड्यू टू द मैकेनिकल इंजुरी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से क्या होता है, डैमेज दी और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द आइज, आइज का स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होता है। सो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी में ड्यू टू दी डैमेज दी रेटिनल लेयर ऑफ द आइज, आइज का रेटिनल लेयर डैमेज होता है। सो ड्यू टू द डैमेज ऑफ द रेटिनल लेयर the light rays are unable to pass through the retina, then retina is unable to carry the light rays to the optic nerve, so optic nerve becomes atrophy, then vision loss होने का chances होता है। This is the one theory that explain the how the glaucoma occurs। okay, next theory is indirect ischemia। indirect ischemia में क्या होता है, indirect ischemia means okay, lack of ब्लड सप्लाई, इस्टेमिया होता है। सो इनडायरेक्ट इस्टेमिया, इस्टेमिया थ्योरी क्या एक्सप्लेन करते हैं, ड्यू टू दी ओके, ड्यू टू दी एटोलॉजिकल फैक्टर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर से इस्टेमिया थ्योरी क्या एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट कॉजेस दी compresses the microvascularization, इस्टेमिया से compresses the micro vessels, माइक्रो वेसल्स इन दी आइज, आइज में जो माइक्रो वेसल्स है, माइक्रो वेसल्स मतलब वेरियस माइन्यूट ब्लड वेसल्स, माइक्रो वेसल्स से वो क्या होता है, डैमेज होता है, मतलब कॉम्प्रेस होता है। ओके, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेस होने से क्या होता है, सो सेल इंजुरी होता है। सो जो कॉम्प्रेस होने से सेल इंजुरी, सो सेल इंजुरी से सेल इंजुरी होता है। सो सेल इंजुरी में लीड टू दी सेल डेड होता है, सेल इंजुरी से सेल डेड होता है, सेल डेड होने से ठीक है, सो ऑप्टिक नर्व डैमेज, सेल डेड होने से सो ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज, क्योंकि इधर सेल डैमेज हो गए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होता है, ब्लड वेसल कंप्रेशन होने से लाइट रेज पास नहीं होता, सेल डेड होने चालू होता है, सेल डेड होने से क्या होता है, आगे रेटिना भी डैमेज होता है। ओके, ऑप्टिक नर्व भी, रेटिना डैमेज से ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होता है। सो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से क्या होता है, सो ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस। सो दिस ब्लाइंडनेस इज दैट कॉजेस द ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस से ग्लूकोमा होता है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में एक पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होने के चांसेस होता है। सो pathophysiology due to the etiological factor increases the intracranial pressure, increase intracranial pressure, due to the increase intracranial pressure there are again two theories explained separately. One is mechanical theory. In mechanical theory cell damages that in mechanical theory that damages the cell, due to the damaging cell, that structural abnormality of the eyes, the structural abnormality may lead to the retinal damages, retinal damages may lead to optic nerve atrophy. So optic nerve atrophy से blindness. Then second theory is indirect ischemia, indirect ischemia that causes the okay, compresses the micro vessels in the eyes, the compression of micro vessels in the eyes may lead to the cell dead, cell dead means cell injury, cell dead से optic nerve atrophy, optic nerve atrophy से blindness. So this is the pathophysiological condition of glaucoma. Okay, next is क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। सो ग्लूकोमा में साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखने चालू होता है। सो ग्लूकोमा का साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्लिनिकल सिम्टम्स इज
ओके। विजन लॉस होता है तो ग्रेजुअल विजन लॉस, सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे विजन लॉस होने चालू होता है। ओके। हालोज अराउंड द विजन लॉस, हालोज अराउंड द लाइट का सराउंडिंग में हैलोज दिखने चालू होता है। मीन्स कोई भी लाइट का बल्ब कोई भी देखा तो, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, ये बल्ब चालू है, ये बल्ब ऑन है, अगर आप लोग देखा तो उसके आगे ऐसा ऐसा रेज दिखने चालू होता है, मतलब इतना बड़ा दिखने चालू होता है। हालोज अराउंड द आइज मीन्स लाइट, हालोज अराउंड द लाइट मीन्स जो भी लाइट का चीज देखा तो उसका आगे भी आपको रेज दिखने चालू होता है, मतलब समथिंग हालोस दिखने चालू होता है। दिस इज द सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा, विजन लॉस, हालोस अराउंड द आईज। ओके। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, फोकस करने में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज हमने सामने से बार बार देखने में दिक्कत हो जाएगा। डिफिकल्टी इन फोकसिंग, कंटिन्यूसली नहीं देख पाएगा। ओके। नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट इन द आइज, डिस्कम्फर्ट इन द आइज, आइज डिस्कम्फर्ट, ओके, आइज डिस्कम्फर्ट होता है। ओके। आई पेन होने चालू होता है, आई डिस्कम्फर्ट, आई पेन। इससे अलावा हेडेक भी होता है, हेडेक, क्योंकि डिस्कम्फर्ट से हेडेक भी होने चालू होता है। ओके। नेक्स्ट, विजन लॉस होता है। ओके। नेक्स्ट इज विजन लॉस भी होता है, ब्लड विजन लॉस में विजन लॉस होता है, विजन लॉस। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लूकोमा, क्योंकि ग्लूकोमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होने के चालू होता है। ग्लूकोमा का साइन एंड सिम्टम्स है। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डेफिनेशन, etiological factor, pathophysiology and the clinical manifestations. In next class we will deal regarding the diagnostic evaluation as well as management of glaucoma. Glaucoma management is very essential. So etiological factor means risk factors, डायबिटीज मेलिटस भी हो सकते हैं, स्मोकिंग से भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से भी हो सकता है, रीनल डिसीज से भी हो सकता है। ठीक है। एनी आई ट्रूमा, आई इंजरी से भी ग्लूकोमा होने का चांसेस होता है। इसमें इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, एक्वायर्ड ग्लूकोमा, प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, प्राइमरी में ओपन एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा। पैथोफिजियोलॉजी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से दो थ्योरी अलग अलग से एक्सप्लेन करता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स, आई डिस्कम्फर्ट, आई पेन, हालोज अराउंड द आईज, विजन लॉस, ब्लड विजन, हेडेक, ओके, डिस्कम्फर्ट इन द आईज, okay, increases the intraocular pressure in the eyes, that is cause discomfort in the eyes. These are the clinical manifestations. So today's class is dismissed. In next class we will see regarding the diagnostic evaluation and management of glaucoma. Thank you very much.